No dreams, no vision, no creativity. Regardless, 1091 marks on matriculation's transcript. Our education system is nothing more than a manufacturing unit, producing qualified yet ignorant people with scores instead of barcodes. Ladies and gentlemen, I have been the victim of same system. I scored extraordinary marks in my matric at inter exams and acquired admission in a famous university of my field. But when I thoroughly analyzed the education of my field, I felt completely like a donkey who has been carrying luggage in the form of books for past 12 years on his back, and just on the basis of marks, considers himself well educated. I was told that whenever I attempt an exam, it doesn't really matter what I write on the paper. What matters is how I decorate it. I was also told, don't dare to write a single word on your own. You have to write exactly what is written in the textbook. Whether it's right or wrong, you have to copy it word by word, period by period, because in this system, you are not supposed to get education, but only to become a photocopy machine, a machine which will scan from the textbook and on the day of examination will print on the paper. Ladies and gentlemen, my education was cremated at the moment when the past papers of last 5 years were shoved down my throat and was told, gulp these like a medicine, because in this system, you are not here to learn, create or innovate, but only to earn grades, so we can display your pictures on the banners of the streets and can denounce other educational institutions. To us, it's alarming that only 1% of our population passes secondary education. But the real dilemma is, even they are not educated. If this is the quality of education, please don't call them educated. They're only the computer machines, not even computer machines, just the hard drives who can only store data, not even process and convert. We are just the hard drives who can only store data, not even process and convert it into useful information, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, these things kept harming my creativity. But what damaged it the most was that I was taught science subjects in a foreign language instead of my own native language. Mr. President, tell me, how can I innovate when my mind is busy translating the concepts all the time? I tried hard to find one scientific breakthrough that had been done in a foreign language, but I failed. Arabs researched in Arabic, English people in English, and Greeks in Greek. It is a proven fact that a person can only innovate in a language he thinks in, a language he dreams in. But this does not matter to us, because for us, education is not to learn, but just to earn. Ladies and gentlemen, these alarming aspects of our education system don't just have impacted us on our creative thinking and learning, they have impacted us way beyond our imaginations. When these toxic norms get into our religious education, they bring catastrophe. Take the students of madrasas, for instance. They have Quran and Hadith memorized in their hearts. But unfortunately, they don't know the essence of it. Their teachers force them to cram the content, which is true in a language they don't understand, because their intention is not to make the students comprehend what God had said, what the Prophet had said, but they want to inject their own viewpoint in their blood. Ladies and gentlemen, the teachers of madrasas, ladies and gentlemen, they want students not to understand the actual religion, but their own viewpoint, their own ideology, and that too in the name of God, Prophet, and their beloved religion. And ladies and gentlemen, believe me, this is exactly what leads to extremism. This is exactly what leads to religious fanaticism.
This is exactly what leads to the brutal murder of Mishal Khan. This heedless education system is nothing more than a system of imposed ignorance. Ladies and gentlemen, the clock will not stop ticking. The 39th Allama Muhammad Iqbal Bilingual Declamation Contest will soon end with its full glory. Time will pass. After a few years, some of us will be the teachers, the directors of educational institutions, and some of us will be sitting in the governing seats of Pakistan. Our children will be standing on this podium and delivering the speech. And by that time, ladies and gentlemen, if the topic, education is the system of imposed ignorance, do not change to education leads to enlightenment, then believe me, culprit will be no one but you and me. Thank you. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से मैं दावत देता हूँ नवीद अहमद को, जिनकी उर्दू मज़ाहिया तकरीर का मौजू है सुना है उसका मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है। ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहूँगा GCU डिबेटिंग सोसाइटी को, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान डिबेटिंग सर्किट को हमेशा बेहतरीन स्पीकर्स दिए हैं। ऐसे स्पीकर्स जो अपनी आवाज़ से बुखारी ऑडिटोरियम पर सहर तारी करते रहे। आज भी आपके सामने ऐसे ही दो बेहतरीन स्पीकर्स मौजूद हैं। एक इस दीवार पे लगा हुआ है, दूसरा उस दीवार पे लगा हुआ है। सदर आला वकार, पाकिस्तान में तो हर सियासतदान का मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सियासतदान बनूं ताकि इस मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म कर सकूं। इसलिए मैंने सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। मैंने फिर सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। फिर मुझे एक बाबा जी ने कहा कि सियासत के मैदान में सिर्फ वो नहीं फिसलता जिसने बूट पहने हुए हों। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो बूट नहीं है, मैं क्या करूं? कहने लगे आपने घबराना नहीं है, तुम बूट पॉलिश कर लिया करो। मैंने कहा बाबा जी उससे क्या होगा? कहने लगे बेटा उससे मुल्क में तब्दीली आ जाएगी। मैंने कहा बाबा जी क्या मतलब, वजाहत करें। कहने लगे बेटा वजाहत मैं कर दूंगा मगर तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, और हो सकता है डिस्क्वालीफाई होने के बाद लापता भी हो जाओ, क्योंकि वो नंबर 1 है। सदर आला वकार कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मैं लापता हो गया और उन्होंने मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर जेल भेज दिया। जेल में मेरी मुलाकात एक निहायत शरीफ इंसान से हुई। वो बहुत दरवेश इंसान थे। खाना खाते वक्त एक निवाला खाते, एक दीवार को लगाते, फिर एक निवाला खाते, एक दीवार को लगाते। मैंने उनसे पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? कहने लगे खाता हूं, लगाता भी तो हूं। मैंने कहा बाबूजी सुना है आपका मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, क्या आप इसी वजह से जेल में आए? कहने लगे नहीं बेटा, ये कहानी है 1990 की, जब मैं छुट्टियां गुजारने खलाई जहाज़ में बैठकर खला में चला गया। वहाँ पर मुझे एक खूबसूरत एलियन लड़की नज़र आई। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसकी ख़ास बात यह थी कि वो हील की बजाय बूट पहना करती, और मैं पॉलिश किया करता। उसके पास गैबी ताकतें थी, वो बंदे गायब कर देती थी। वो बंदे ऐसे गायब करती थी जैसे GCU वालों ने कफील राना को गायब किया। फिर मेरी सालगिरह आई और सालगिरह पे उसने मुझे कुर्सी दी। 2.5 साल तक मैं कुर्सी के साथ खेलता रहा, फिर उसने कुर्सी वापस ले ली। प्यार मोहब्बत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि 1999 आ गया। इस मरतबा उसकी सालगिरह आई और तोहफे में मैंने उसे बिल्ला दिया, जो डरता वरता किसी से नहीं था।
फिर मैंने उसे कहा चलो आओ कोई धंधा शुरू करते हैं। कहने लगी पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर एक लड़की गाड़ी में बैठी हो तो उसे क्या कहेंगे? मैंने कहा गर्ल कार। कहने लगी नहीं कार गर्ल। मैं कहा नहीं गर्ल कार। फिर इसी कारगिल के इशू पे हमारी लड़ाई होगी। लड़ाई इतनी शदीद हुई कि उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन मैंने ये पहली मर्तबा सोचा था कि मुझे क्यों निकाला। फिर वो 5 साल तक शुजात के साथ साइकिल चलाती रही। और रहमान का फजल तो उसके साथ था ही। और दूसरी तरफ मुझे एक अरबी शेख मिल गया जो मुझे अपने साथ अल्लाह की सरजमीन पर ले गया। फिर वहाँ जाके मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि शेखों की 2 इकसाम है और इनमें से सबसे अच्छी है मिल्क शेक। फिर वहाँ पर मैंने खजूर की रेडी लगाई जिस पर सुबह में शाम को मेरा बेटा बैठा करता और खजूर के कारोबार में हमें दिन दुगनी और रात चुगनी 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 तरक्की हुई। फिर मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी शुरू कर दिया। खजूर का कारोबार इतना बड़ा कि खजूर को ज़ख़ीरा करने के लिए हमें लंदन में फ्लैट खरीदना पड़े। कतर का शहजादा तो ख़त लिखकर खजूर मंगाया करता। माइक्रोसॉफ्ट ने भी हमसे कई मुआहदे किए कैलिबरी में। फिर मैं सारा धंधा छोड़कर घर वापस आ गया क्योंकि अब वो रहीम और मेरी तरह शरीफ हो चुकी थी। फिर मैं उसे मिलने गया और मैंने उसे कहा थैंक यू रहीम शरीफ। फिर एक दिन हम दोनों वोट डालने पोलिंग स्टेशन गए। वो अपना वोट डाल रही थी कि वोट ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसे कहा वोट को इज्जत दो। इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे कमर तोड़ जवाब दिया। मैंने उसे कहा, फिर उसने मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा दिया और उसे मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और के पास चली गई। मैंने कहा बाऊजी आप उससे इतनी मोहब्बत करते थे, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ देते। कहने लगे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ देता, फिर मेरे बच्चों का क्या बनता, क्योंकि उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और अगर मैं मनी लॉन्ड्रिंग छोड़ देता तो रोटी कहाँ से खाता। मैंने कहा देखें रोटी का वादा अल्लाह ने किया है और सालन आप लंगर खाने से ले लेते। फिर कहने लगे मुझे छोड़ने की एक वजह यह भी थी कि मैं मोटा था और अब वो हैंडसम के पास गई थी। फिर मैं हैंडसम से मिलने बनी गाला मैरिज ब्यूरो गया क्योंकि उनका शादियों का धंधा था। मैंने उनसे पूछा कि एलियन लड़की को आपसे मोहब्बत कैसे हुई। कहने लगे ये मई के महीने की बात है जब मैं तकरीर करते हुए स्टेज से गिरा। जब एलियन लड़की को यह मालूम हुआ कि मैं गिरा हुआ हूं तो फिर उसने मुझे कुर्सी दी टायरों वाली जो रिमोट से चलती थी, मगर पता नहीं क्यों रिमोट नहीं दिया। फिर वो 1 साल तक कुर्सी चलाती रही कि रिमोट की बैटरी ख़त्म हो गई। उसने चार्ज करना चाहा, प्लग दूर था, इसलिए फिर मैंने उसे एक्सटेंशन दी। तीन प्लगों वाली। क्योंकि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप सर्विस बढ़ा दीजिए, सर्विस बढ़ा दी गई। सदर आली वकार, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि एलियन लड़की रिमोट वाली कुर्सी चलाती है या फिर डीजल वाली। मगर मैं इस तमाम कहानी के बाद अब सियासतदान नहीं बनना चाहता।
क्योंकि हमारे यहाँ हुक्मरानी सियासतदानों की नहीं बल्कि एलियन लड़की की है। वो जब चाहे जिस पे चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर उसे कहानी से बाहर कर दे। और अगर हमें ये मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म करना है तो हमें अपना जमहूरी निज़ाम बेहतर बनाना होगा, क्योंकि इस निज़ाम से हमें अक्सर बेवकूफ़ सदर मिलता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो मिसाल आपके सामने है। अमरीकी सदर की। शुक्रिया। इस साल बेहतरीन उर्दू मुक़र्रिर का एज़ाज़ हासिल किया IT यूनिवर्सिटी लाहौर से नवीद अहमद ने। उनतालीसवें कुल पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल बायलिंगुअल डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट की टीम ट्रॉफ़ी हासिल की इस दफ़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर।